Hello students, welcome to the MP's Institute of Physics. I am your mentor Mihir Patel. You are again welcome back to the lecture series for rapid revision. Today's our chapter, that is work, energy, power. So we'll quickly revise all the formula related to this chapter. So if we start with the first component, that is work done by a constant force. So it's a very simple point. That is work done is equals to force into displacement. Please keep in mind force and displacement both are the vector quantity and the work done is the scalar one, scalar quantity. When you put down this dot product, obviously it is a cos theta component. Over here, please make sure regarding the MCQs, different value of theta. Theta may be 0, theta may be 90 or theta may be 180. So according to that, you have to calculate this specific work done. When the body of mass m raised through the height h, obviously in another language, this point can be considered with the potential energy. So उसका formula आप note down कीजिए, W is equals to mgh. So if the body moves up with certain kind of plane inclined at the angle of theta with the constant speed, means बहुत सिंपल सा कंसेप्ट हो गया कि यहां पर जो हमारा वैल्यू था वर्क डन का वो mgs था, h बोलो या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलो s वो सेम ही है, लेकिन इंक्लाइंड एंगल यहां पर बना तो ऑब्वियसली वी नीड टू पुट दिस साइन थीटा ओवर हियर इन इक्वेशन. सो क्लियर विद दिस थ्री फॉर्मूला. ये रिलेशन भी याद रखना, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, प्लीज कीप इन माइंड. देन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. जब वेरिएबल फोर्स आएगा तो ऑब्वियसली उस केस में हमें आइदर सिग्मा और हमें इंटीग्रेशन कंपोनेंट को इंक्लूड करना होगा. जस्ट कीप इन माइंड, टू थिंग्स आर देयर, राइट? वन सिग्मा एंड सेकेंड वन दैट इज इंटीग्रेशन. बाकी फॉर्मूला कंसेप्ट तो आपको पता ही है. और थर्ड पॉइंट याद रखना, वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व between the initial and final positions of the body. ये वर्क डन बेसिकली है क्या? मीन्स एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, F वर्सेस D का जो आप अल्टीमेटली ग्राफ बनाओगे उसके बीच में जो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस है उसको हम यहां पर कंक्लूड करेंगे. देन आफ्टर काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थियरम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आइडेंटिफाइड सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर. काइनेटिक एनर्जी आपको प्रीवियस चैप्टर्स में भी आप डिस्कस करके आए हो, तो उसका सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है 1/2 mu² या फिर v² भी लिख सकते हो. वर्क एनर्जी थियरम इज बेसिकली वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग क्या होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. द मीनिंग ऑफ वर्क एनर्जी थियरम दैट इज final kinetic energy minus initial kinetic energy. So in this case we can identify the point 1 electron volt. Please make sure regarding this conversion which one is important for numericals. After that, the next point, that is potential energy and conservation of energy. उसके related basic formula आप लिख सकते हो पहले. U is equals to mgh. U is equals to mgh. That is potential energy, gravitational potential energy. And then for a concept of conservative force, you can have the concept of differentiation. Change of potential energy with respect to distance. Please write down change of potential energy with respect to distance. F is equals to minus du upon dx. और ये जो वैल्यू है नेगेटिव साइन, वो आपको अच्छी तरह से रिकॉल करनी है एमसीक्यूज के लिए. एट द सेम टाइम जब चेंज वैल्यू आप लेते हो तो उसको फाइनल माइनस इनिशियल भी हम लिख सकते हैं, एंड दैट वी कैन इक्वेट विद द वर्क डन वैल्यू. और जो वर्क डन का यहां पर फॉर्मूला हमें मिलता है वो
इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट में भी हमको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, इनिशियल एंड फाइनल लिमिट्स वी हैव टू पुट डाउन. प्लीज राइट डाउन दिस इक्वेशन ऑल्सो. यस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. When work is done only by conservative forces, only mechanical energy is conserved. ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन के लिए परफेक्टली याद रखना. When work is done only by conservative forces, only mechanical energy is conserved. So उस केस में ये फॉर्मूला है, लिख दीजिए K प्लस U, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. Please recall this perfectly, this formula. Okay. Then after the concept of spring, ये याद रखना, स्प्रिंग का कंसेप्ट, उसमें पोटेंशियल एनर्जी का हम डिस्कशन करते हैं. तो सबसे पहले जो हुक्स लॉ है वो बेसिकली क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन. सो ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस साइन आपको दिखता है. प्रोपोर्शनलिटी को जैसे ही रिमूव करेंगे हम क्या लिखेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसको हम बोल सकते हैं फोर्स कांस्टेंट. तो उसका भी ये फॉर्मूला हमें यहां पर मिल गया. ऑब्वियसली जब आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, दैट मींस वर्क डन ऑन अ स्प्रिंग और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग स्ट्रेच्ड थ्रू द डिस्टेंस, तो उस केस में ये फॉर्मूला होगा वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/2 kx². सो दिस वन इज मच मोर इंपॉर्टेंट. उसके ऊपर से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं. नाउ आफ्टर दैट मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये फंडामेंटल टॉपिक, एनर्जी रिलेशन, आइंस्टाइन का जो रिलेटिव थियरी है उसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है. E इज इक्वल्स टू mc², वेयर m इज अ मास एंड c इज अ स्पीड ऑफ लाइट, राइट, एंड दिस ऑल कन्वर्जेंस, राइट. आप इसको मैं स्टैंडर्ड 12th के न्यूक्लियस चैप्टर को भी आप फोकस कर सकते हो, क्योंकि अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स को मैं इंटर कन्वर्जन के तौर पे बोल रहा हूं. सो ये कन्वर्जन्स भी आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा. देन सिंपल टॉपिक ऑफ पावर वाज देयर. पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम. ये फॉर्मूला के कंसेप्ट में बेसी न्यूमेरिकल्स आते हैं. ये पॉइंट याद रखना, फोर्स इनटू वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड पावर, राइट. मींस फोर्स और वेलोसिटी का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें पावर मिलेगा. सो P इज इक्वल्स टू FV इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर अस. यू कैन सी दिस ऑल कन्वर्जन्स, राइट, जो न्यूमेरिकल पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज मेक श्योर रिकॉल दिस ऑल कन्वर्जन्स. Kilowatt, that is 1000 watt. Horsepower, 1 horsepower is equals to 746 watt. 1 kilowatt, that is 1000 watt, and 1 HP, that is 746 watt. Please make sure regarding this very important conversions. Yes, now one of the identified segment again, that is the concept of collision. अगर सिंपल फर्स्ट फॉर्मूला है तो वो तो पुराने वाला है. अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है तो हमें उसको लिखने के लिए क्या बोलना होगा, बिफोर कॉलिजन का लीनियर मोमेंटम एंड आफ्टर कॉलिजन का लीनियर मोमेंटम. सपोज आपके पास दो बॉडी है, मींस बॉडी ए एंड बॉडी बी, राइट. सो उस केस में सिंपली मैं आपको बोलता हूं कि मास इनटू वेलोसिटी बॉडी ए के लिए लिखा इनिशियल, और मास बी, मास m2 जो बॉडी है उसका जो हमें यहां पर वेलोसिटी लिखना है u2, मींस लीनियर मोमेंटम बॉडी ए का और लीनियर मोमेंटम बॉडी बी का. सेम वे आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज, तो उसका वैल्यू लिखा v1 v2. प्लीज कीप इन माइंड. सेकेंड है काइनेटिक एनर्जी, कंजर्व कब होती है, इलास्टिक कॉलिजन में, याद रखना. तो ऑब्वियसली जैसे फर्स्ट फॉर्मूला बनाया वैसे ही ये फॉर्मूला बनाना है. सिर्फ याद करना है कि काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखना है. क्या, काइनेटिक एनर्जी का आपको इक्वेशन लिखना है. सो प्लीज मेक श्योर रिगार्डिंग दिस इक्वेशन. आफ्टर दैट, इन वन डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन, वेलोसिटीज आफ्टर कॉलिजन्स आर गिवन बाय. सी, मैंने आपको हमारे रेगुलर लेक्चर में भी इसकी टेक्निक्स सिखाई हुई है कि इक्वेशंस कैसे याद रखने हैं. ऑब्वियसली इसका डेरिवेशन बहुत लंबा था, 4 मार्कर क्वेश्चन था, राइट. बट अभी
डेरिवेशंस की जगह हमें फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है एमसीक्यू के लिए। तो देखो, सपोज आपको V1 लिखना है और साथों साथ आप ये भी याद रखो V2, दोनों के इक्वेशंस को एक साथ याद रखना। फिर से जो सिखाई हुई टेक्निक है उसको मैं रिवाइज करवा रहा हूं। ये इज इक्वल्स टू लिख दिया, सबके डिनोमिनेटर में आपको क्या लिख देना है, m1 प्लस m2, राइट। यहां m1 प्लस m2 लिख दिया, ये यहां पर रेशियो बीच में प्लस, रेशियो बीच में प्लस, ओके हो गया ये। अभी समझो, यहां V1 है ना, तो यहां पर U1 आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ओवर हियर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। फिर ये U1 के साथ सिंपल आप फोकस कर दो, यहां जो स्टेप हमने लिखा हुआ है, यहां जो U1 है उसके ऊपर हमें क्या लिखना है, ये 1 है तो यहां m1 माइनस m2 लिखना है। मींस V1 वाले इक्वेशन में क्या आएगा, m1 माइनस m2 आएगा। और वैसे ही आप V2 में देख सकते हो, जो V2 ये 2 है ना, तो यहां पर क्या आएगा, 2 पहले आएगा, माने m2 माइनस m1, और यहां पर 2 है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, u2 हो जाएगा, ओके। देन प्लस आप देख रहे हो, यहां सिंपल, अगर यहां u1 लिख दिया तो बाकी क्या बचा, u2, यहां u2 लिख दिया तो बाकी क्या बचा, u1, वो लिख देना है। यहां v1 है तो ऑब्वियसली यहां m2 आएगा, मींस अगर 1 है तो मास 2 का आएगा, और यहां पर 2 है तो मास यहां पर 1 का आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। प्लीज मेक श्योर रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला। देन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर अ कॉलिजन, अगर सिंपल बोलो तो फाइनल वेलोसिटी जो थी वो और इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए वो डिफरेंसेस का हम रेशियो निकालते हैं। मींस फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस किसका, फर्स्ट बॉडी का और सेकंड बॉडी का, सेम वे अपॉन में क्या है, फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी का डिफरेंस वैल्यू वेलोसिटी का। सो उसको हमने क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यहां पर अगर सिंपल बॉल रिबाउंड होता है फ्रॉम द फ्लोर तो सिंपली हमको लिखना है v अपॉन u। इफ द collision is elastic then the value of e would be 1. If collision is inelastic then obviously the e value is less than 1. Elastic collision means there is no loss of kinetic energy, means kinetic energy is going to conserve. But in case of inelastic collision, obviously there will be a loss of kinetic energy. So please make sure regarding this particular formula. So far we have completed the all important formulas related to work energy power. Stay connected with us for our next session. Thank you.